नमस्कार। आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स फॉर क्लास 3 मैथ्स ओलंपियाड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिया वांट टू अरेंज द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। द फर्स्ट इज 7542, 7954, 7929 and 7924. Now see the smallest number arranged in ascending order. The first we write the smallest number. We see 7500, 7900, 7900, 7900. So the smallest is 7500. First word is P. Next we see the tens place. 5, 2, 2. That's mean इन दोनों में से कोई छोटा होगा. Now check the ones place. The ones place is 9, the ones place is 4. The smallest is S. That's mean P के बाद हम S लिखेंगे, S के बाद R and next is Q. The correct option is D. The question number 12. The difference between the smallest and the greatest 4-digit number formed by the given digit. Using each digit only once. तो इसमें हम सबसे पहले greatest number लिखेंगे. तो greatest number कैसे form होगा आपका? 9, 8, 7, 5. एंड द स्मॉलेस्ट नंबर का है तो स्मॉलेस्ट नंबर जस्ट इसको रिवर्स करके लिख देंगे 5, 7, 8, 9. अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे. 15 माइनस 9 6. यहाँ रह गया 6. 16 माइनस 8 8. यहाँ रह गया 7. 7 माइनस 7 0 और 9 माइनस 5 4. सो द करेक्ट आंसर इज 4086. The option D again is correct. The next question 13 is how many thousands, hundreds, tens and ones respectively should be added to obtain the largest 4-digit even number. सबसे पहले हम ये सोचेंगे लार्जेस्ट नंबर होता क्या है 4-digit नंबर. तो लार्जेस्ट 4-digit नंबर इज 9999. अब यहाँ कहा है इवन नंबर, तो जस्ट इससे बिफोर क्या नंबर आएगा 9998. Now check the option 999 100 998. The option C is correct since 1000 nines, 100 nines, tens 9 and ones place is 8. So option C is the correct answer. Next question is if this figure stands for 7641, square stands for 1426. So if we add both of them, the number get P, or if we difference both of them, the difference we get Q. तो find P minus Q. तो जब सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, the 7641 plus 1426. तो ऐड करेंगे 9067. तो ये हमारा हो गया P. P इक्वल टू 9067. नाउ द Q क्या है? Q इन दोनों का डिफरेंस है 7641 माइनस 1426. 11 माइनस 6 5. 3 माइनस 2 1. 6 माइनस 4 2 और 7 माइनस 1 6. अब हमारा यानी Q क्या हो गया 6215. उसने कहा है P माइनस Q. नाउ सी P माइनस Q, तो हम इसको माइनस करेंगे. 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 1 5, 10 माइनस 2 8 और 8 माइनस 6 2. 2852. So the correct option B is the right answer. 2852. Question number 15. Which of the following number statement represent the shaded part in the given portion? Now we can see the shade parts only 3. 1, 2, 3 and total are 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the correct option is 3 upon 8. And next is total is 4. So we write denominator 4 or shaded is 2. 2 by 4. So just cut it. 1, 2 ones are 2, 2 twos are 4. 3 by 8 and 1 by 2. The answer is 3 by 8 or 1 by 2. So which option is 3 8 by 1 by 2? Option A. 3 upon 8 is less than 1 by 2. Next question number 16. In question number 16,
Which of the following can be found from the information given on the box in the candies? Now we can see net quantities 20 यानी 20 है ये. Cost 20 into 10 यानी 20 quantities है. Multiply by 10 कर रहे हैं, इसका मतलब एक quantity 10 rupees की होगी. The answer is 200. So it contain 20 candies. It is correct. Each candy cost rupees 10. यहाँ शो हो रहा है. यस ये भी सही है. Cost of 20 candies is rupees 20. नहीं ये तो गलत है क्योंकि 10 है. Both A and B. So the both A and B are correct. So option D is the right answer. Next question is what is the total weight of P, Q and R? अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 16 के बाद नेक्स्ट 24 आ रहा है, 24 के बाद 32 और यहाँ पे ये जो स्मॉल डिवीज़न है ये है 1 2 3 4 यानी एक डिवीज़न रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को. 16 के बाद एक डिवीज़न यानी 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 एंड द लास्ट इज 24 यानी हर एक डिवीज़न 2 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पे 16 के बाद यहाँ पर है ये एरो, देन दैट्स मीन 18. यहाँ भी सेम है 18 और यहाँ पे एग्जैक्ट 32 के बाद 34 36 यानी हम इसको ऐड करेंगे 18 18 और यहाँ पर है 36 ऐड करेंगे 72 72. There is no option for 72, so the answer correct is none of these. Question number 18. Find the values of P and Q respectively. तो यहाँ पर देखिए 6 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 8 आए, तो हम इसे कैरी लेंगे 16. 16 माइनस 8 8 यानी Q की प्लेस क्या होगी 8. तो यहाँ पर देखेंगे Q की प्लेस 8 कहाँ पर है P एंड Q रिस्पेक्टिवली. इसका मतलब Q लास्ट वाला कौन सा है 8 यहाँ पर है. तो हमें P निकालने का ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर इधर से ही क्लियर हो रहा है कि Q8 इसमें आ रहा है और किसी में तो आ नहीं रहा. सो द ऑप्शन A is the correct answer. Next is 19. What is the missing number in the box? Missing number in the box या तो एक तरीका है आप हर एक वैल्यू पुट करके देखिए 3, फिर इसको सॉल्व करके देखिए क्या 23 आ रहा है, देन 5 करके देखिए, फिर 2 करके देखिए और फिर 0. या दूसरा तरीका ये है इक्वल टू है, इक्वल टू के जस्ट उल्टा स्टार्ट करिए +1 यानी हम 23 में क्या कर देंगे +1 दे रखा है तो -1 कर देंगे, दैट्स मीन 22. उसके बाद दे रखा है +10 तो 22 में -10 कर देंगे. -10 करने पर हमारा आएगा 2 और 1 12. 12 उसके बाद क्या कह रहा है -4 यानी 12 में -4 जस्ट अपोजिट करेंगे जो दे रखा है उसका उल्टा. 12 + 4 16. 16 उसके बाद उन्होंने कहा है मल्टीप्लाई बाय 8 यानी हम क्या कर देंगे 8 का डिवाइड कर देंगे 16 से. द आंसर इज 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द C 2. Next question is 20 question. There are dash thousand is 9,643. So 9,000 it is easily represented. There are 9,000s in 9,643. Next question is question number 21. There were 2,176 car parked in a parking lot on Monday. If 1,120 car more were parked on Tuesday than Monday, then the number of parks on Tuesday are. तो हमने क्या करना है मंडे को है और ट्यूसडे को इतनी मोर कार पार्क हुई. दैट्स मीन हम क्या करेंगे इसको प्लस कर देंगे 2176 प्लस 1122 क्योंकि इतनी कार मोर पार्क हुई हैं. तो 6 और 2 8, 7 and 2 9, 1 and 1 2, 2 and 1 3. The answer is 3,298. Next the question number 22. The distance from Delhi to Mumbai is 2,453 and from Delhi to Kolkata 2,543 kilometer. Find the actual and estimated difference of both the distances respectively if distance is round off to nearest 100. सबसे पहले हम एक्चुअल करके देखेंगे. एक्चुअल वाले में हम 2,400 और यहाँ 2,500. 2,000 बड़ा है 500 तो इसको लिखेंगे 2,543 माइनस 2,453 माइनस करेंगे
3 minus 3 0, 4 minus 5 9, 0. द आंसर इज 90. तो 90 ऑप्शंस ए में भी है, बी में भी, सी में भी और डी में भी. इससे हम पता नहीं कर पाएंगे. अब उसने कहा एस्टिमेटेड. एस्टिमेटेड 100 का है, तो 100 में कितने ज़ीरो हैं? 2 ज़ीरो हैं. तो यहाँ पर देखो 2 4 5 3 में 2 ज़ीरो, यानी 53. 53 है. 2 ज़ीरो को देखो, अगर ये 50 से लेस है तो ये ज़ीरो हो जाएंगे, और अगर ये 50 से ग्रेटर है तो आगे वाले में 1 ऐड हो जाएगा. अब जैसे यहाँ हम देख रहे हैं 2453, इसके अंदर 53 2 ज़ीरो है, ये 2 ज़ीरो जो है 50 से ग्रेटर है, तो ये आगे वाले में ऐड हो जाएंगे, यानी 2500 बन जाएगा ये. अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखेंगे 2543. ये 500 जो 43 है ये 50 से लेस है. फिर वही 2 ज़ीरो देखेंगे, 100 में 2 ज़ीरो है इसीलिए ये 50 से लेस है, तो इसको हम बिल्कुल आगे इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ये बस 0 0 बन जाएगा. 2500. तो जस्ट इसको माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. अगर आपको एस्टिमेटेड में प्रॉब्लम है, अगर आपको पूछना है तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 23. इन द एग्जामिनेशन हॉल 500 चेयर वर अरेंज्ड इक्वली इन 10 रोज. हाउ मेनी चेयर आर देयर इन ईच रो? ईच रो मीन्स 1 रो का पूछा है हमसे. 10 रोज का पता है, 1 रो का पता करना है. तो जब भी ऐसा होगा, ज़्यादा का पूछ दिया गया है और कम का पता करना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे 10 को हम 500 से डिवाइड करेंगे. सो 10 5 ज़ा 50. द आंसर इज 50. द करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट क्वेश्चन a bamboo plant was 1 meter 65 centimeter tall were planted. It has grown 20 meter 85 centimeter more. How tall is the plant now? अब यह इतना वो और ग्रो हो गया, तो उसमें जस्ट एडिशन करेंगे मीटर सेंटीमीटर. 1 मीटर 65 और कितना और ग्रो हो गया? 20 मीटर 85 सेंटीमीटर. प्लस कर देंगे 5 और 5 0, प्लस करेंगे 15. ये 15 कैरी चला जाएगा क्योंकि मीटर है, वैसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये इसको कैरी चला जाएगा 2 और 2. द आंसर इज 22 मीटर 50 सेंटीमीटर. द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25. Manan bought a pen, a book, a two eraser. It had 1,000 rupees note. How much money did he receive in change? तो यहाँ पर देखिए, अब पेन कितने का है हमारा? 100 रुपीज़. अ बुक है 225. एंड 2 इरेजर, 1 इरेजर 20, then 2 इरेजर 40. जस्ट ऐड देम 365. 365. ही हैज़ 1,000 रुपी नोट. तो 1,000 रुपीज़ नोट माइनस 365. 10 minus 5 5, 9 minus 6 3, 635. The correct answer is option A, 635. And the next question is, Vihan has 1,000 apples. He gave half of it his brother and 1/5 of the remainder to his friend. How many apples will left with him? विहान के पास 100 एप्पल्स है, हाफ उसने ब्रदर को दे दिए, तो हाफ 100 का हाफ कितना होगा? 50. तो 50 एप्पल्स उसने अपने ब्रदर को दे दिए. 100 का हाफ 50 एप्पल्स उसने अपने ब्रदर को दे दिए. एंड 1/5 ऑफ द रिमाइंडर 100 में से 50 ब्रदर को दे दिए, तो विहान के पास कितने बचे? 50 एप्पल्स. 1/5 ऑफ द रिमाइंडर यानी उसने रिमाइंडर दिए अपनी फ्रेंड को. फ्रेंड के निकालेंगे, फ्रेंड को उसने कितने दिए? 1/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितने बचे थे? 50. तो इसे कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 10. यानी 50 उसने अपने भाई को दिए हैं और 10 उसने अपने फ्रेंड को दिए. तो हाउ मैनी एप्पल्स विल बी लेफ्ट विद हिम? यानी 50 और 10 60 एप्पल्स उसने दे दिए. ही हैज़ 100 एप्पल्स, 100 माइनस 60 एप्पल्स. नाउ द 40 एप्पल्स आर लेफ्ट, यानी विहान के पास केवल 40 एप्पल्स हैं. द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर.
Next is Rohit is making the calendar for the bulletin board. Which day of the week should be 25 December 20XX? तो यहाँ से पूछा है कि 25 दिसंबर कब आएगा. तो 14 में हम +7 कर देंगे. यहाँ पर 14 + 7 21, यानी 21 यहाँ पर आएगा सैटरडे. अब सैटरडे के बाद 7 इसलिए प्लस किए क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं. 21 यहाँ पर आ गया. अब इसको ओरल करेंगे. 22, 23, 24, 25, यानी वेडनेसडे को आएगा 25 दिसंबर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. द नेक्स्ट इज गोलू हैज़ 48 rupees. How much money will be left with him if he buy 2 ice cream? Now we can see the cost of the ice cream is 5. So 2 ice cream rupees 10. 2 Milky Bar. The 1 Milky Bar is cost rupees 5. So 2 Milky Bar again 10 rupees. And 1 pen. 1 pen cost rupees 7. And 1 burger. 1 burger cost rupees 10. So just add them 37. Or Golu has 48 rupees. So 48 minus 37. The answer is 11. So Golu has left money is 11 rupees. The option D. Next question is the given table shows the number of students who were absent in a day of a particular week. Monday 3, Tuesday 4, Wednesday 2, Thursday 4 and Friday 5. Saturday no one is absent. So how many children were absent on Thursday and Friday? काउंट करेंगे. थर्सडे के 4 हैं और फ्राइडे के 5 हैं. 4 + 5 9. 9 है यहाँ पर 9 स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे देखिए एक स्माइली रिप्रेजेंट कर रही है 5 स्टूडेंट्स को, यानी हमारे 4 और 5 9 स्टूडेंट्स आए थे. 9 × 5, क्योंकि एक स्माइली 5 को रिप्रेजेंट कर रही है. 9 स्माइली 9 5 = 45. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे? द करेक्ट ऑप्शन इज ए. On which day no student was absent? Saturday. Now the achiever section. The value of heart is 8 times as such as the value of star. What is the value of heart if star plus 72? आप देखेंगे star plus 72 equal to 184. यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ जाकर हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. 184 माइनस 72. तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे. 4 - 2 2, 8 - 7 7, 1 - 1, यानी एक स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है 112 को. और यहाँ पर उसने कहा था जो हार्ट है वो 8 टाइम्स है एज मच एज द वैल्यू ऑफ स्टार. तो 112 मल्टीप्लाई बाय 8. 8 2 = 16, 8 1 = 8 9 and 8 1 = 8. The correct option D 896. The next question 32 is which of the following statement is incorrect? Object P, object Q are of equal weight. बिल्कुल सही है ये. Next object S is lighter than object R. ये गलत है. S तो नीचे झुक रहा है. That's mean ये heavier है. नाउ चेक करते हैं. सी ऑब्जेक्ट एक्स इज हैवियर. ये बिल्कुल सही है. ये नीचे झुक रहा है. ऑब्जेक्ट एक्स इज हैवियर देन वाई. ऑब्जेक्ट आर इज लाइटर देन ऑब्जेक्ट एस. यस, ये भी बिल्कुल सही है. सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज बी. द मिसिंग डिजिट ऑफ द बॉक्सेस. यहाँ पर देखिए डिवाइजर हमें दिया नहीं है. डिविडेंड 148, 49 इज द क्वोशिएंट एंड आर 1, यानी रिमाइंडर है 1. तो यहाँ पर हमें एक एक के साथ इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा सही है या नहीं. 148 डिवाइडेड बाय 6. अगर हम 6 से करेंगे तो 6 2 = 12, लेकिन यहाँ पे तो 4 आ रहा है तो यानी 6 से तो नहीं करेंगे. फिर हम किसी और से करेंगे. 2 से करके देखते हैं 148 का. 2 7 = 14, लेकिन यहाँ पे तो क्वोशिएंट 4 है, यानी ये भी हमारा गलत है. नेक्स्ट हम 3 ट्राई करेंगे. 148, 3 4 = 12. यस, ये सही आ रहा है. 4 - 2 8 28, 3 9 = 27. रिमाइंडर 1 बिल्कुल सही आ रहा है. इसका मतलब यहाँ जो डिवाइज़र है हमारा वो है सी ऑप्शन. द आंसर इज सी. द लास्ट
Last two questions are, Vidhi has 60 apples. She gave 1/3 of her to her sister and 1/5 of the remainder to her brother. Then match the following. सबसे पहले हम निकालेंगे, विधि के पास है 60 एप्पल्स. शी गेव 1/3 ऑफ हर सिस्टर, यानी उसने सिस्टर को कितने दिए. फर्स्ट वी फाइंड 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई. इट यानी टोटल 60 एप्पल्स थे, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20, यानी उसने अपनी सिस्टर को एप्पल्स दिए हैं 20. एंड 1/5 ऑफ द रिमाइंडर टू हर ब्रदर. 60 में से 2 माइनस करेंगे, कितना आएगा 40, यानी रिमाइंडर एप्पल्स कितने बचे 40. 1/5 टू हर ब्रदर, तो यानी 1/5 ऑफ द रिमाइंडर. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और रिमाइंडर यानी 40, ये उसने दिए अपने ब्रदर को. तो ब्रदर के लिए सॉल्व करेंगे. 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, यानी उसने अपने ब्रदर को कितने दिए 8 एप्पल्स. नाउ मैच द करेक्ट ऑप्शन. द नंबर ऑफ एप्पल्स शी गेव टू हर सिस्टर इज, सिस्टर को उसने कितने दिए थे 20 एप्पल्स, यानी ए के साथ ऑप्शन जाएगा सेकंड. अब देखिए ए के साथ सेकंड किस में है, इसमें ए के साथ थर्ड है, इसमें ए के साथ फर्स्ट है, इसमें ए के साथ सेकंड है, यानी ए या सी में से कोई है. बी चेक करेंगे. द नंबर ऑफ एप्पल्स हर ब्रदर टू गॉट, हर ब्रदर को कितने दिए थे 8, यानी बी के साथ जाएगा 1. बी के साथ 1 किस में है, ओनली सी में, यानी सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ. यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने का तरीका क्या है, 2/6, यहाँ पे देखेंगे 2/6 इंपॉर्टेंट है ये. 2/6 इक्वल टू एक्स अपॉन 9 इक्वल टू 4/डैश, 4/डैश या y. सबसे पहले हम इसको देखेंगे, लोएस्ट में कन्वर्ट करेंगे. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1/3 इक्वल टू एक्स अपॉन 9. अब यहाँ पर देखिए 9 आ रहा है, यानी हम 3 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 9 आए. तो 3 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा. अगर हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी करेंगे. 3 1 जा 3, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3. अब y के लिए चेक करते हैं. यहाँ पे फिर से अब हम इसे लेंगे 1/3 दोबारा से. 1/3 इक्वल टू, अब ये वाला ले लेंगे 4/y, 4/y. यहाँ किसका मल्टीप्लाई करें कि न्यूमरेटर में 4 आए, 4 का. जब न्यूमरेटर में 4 का किया तो डिनोमिनेटर में भी 4 का करेंगे. 4 3 जा 12, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 12. अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, फाइंड द वैल्यू y डिवाइडेड बाय x, यानी 12 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारा +5 -4. 3 जब हम 12 का डिवाइड करेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 5 + 5 -4, यहाँ पे -4, यहाँ पे +4 कैंसिल हो जाएंगे. द आंसर इज 5. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. यहाँ पर हमारा ओलंपियाड फिनिश होता है, क्लास 3 का मैथ्स ओलंपियाड. अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है या आप किसी भी पॉइंट को, किसी भी टॉपिक को डिस्क्राइब में समझना चाहते हैं, दोबारा से समझना चाहते हैं डिटेल में, आई विल एक्सप्लेन यू. यू जस्ट टेल मी इनटू द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. नमस्कार.